Okay, so today we will discuss about Unit 2 of that RMSW. रिसर्च डिजाइनिंग के बारे में हम लोग एक क्लास लिए थे, मुझे याद आ रहा है. व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग, रिसर्च प्रिंसिपल, याद है आपको? यस सर, लिया था। हाँ, तो रिसर्च डिजाइन के बाद आता है नेक्स्ट थिंग इज द सैम्पलिंग टेक्निक, देन आता है डाटा कलेक्शन टेक्निक. ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में. तो आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर. तो before going to that sampling technique, there are some terms which are already we will discuss. What is universe and what is population and what is a sample, what is census. ये सब हमने पहले जब रिसर्च डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस किया था. फिर भी एक बार उसको रिपीट करते हैं. व्हाट इज सैंपल? दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल यूनिवर्सिकल सैंपल. व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज नथिंग बट द टोटल स्टडी एरिया or total study around where your research is going on. So that is called universe or populations. And if the population is includes some numbers of humans or total count, then that is called census inquiry. That means if you are counting the numbers of individual, that may be humans or any other kind of species, that is called census inquiry. How many different ages are, it means below 0 to 10 age, 10 to 20, how many numbers of individuals are there, then in a population, that is called census inquiry. And the items to be selected that from a total sample which is the representative of this total universe or population, that is called sample. So the selection of the sample from a universe or the population, there is very vital task for our research, because in a study rebound or study area, let's say there are 10,000 numbers of individuals open we are going to be study, but we cannot do in each and every experiment to the every persons or every numbers of the study. So what we have to do, we just select some numbers of representative, that is sample from the whole universe. Let's say select 100 number of sample from the 10,000 numbers of people, and we are going to do experiment to that 100 people only, not the 10,000s, and we make a conclusion about the whole total 10,000 people. So that type of selection, what type of selection we are going to select the sample which may be represent the whole each attribute, whole attribute of the total population. मैंने that means कहीं ना कहीं हमको ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए जो कि सारे को रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड may not be a bias. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सारे गुण नहीं है उसका. So the selection of the sample which is a very crucial factor for the total research, and this is called the planning which you can select whole the sample, that is called sample designing. If you remember, there are four designing in case of research designing, that are sample designing, analysis designing, then procedural designing, and last is total statistical designing. So these four designing, the sample designing the first, where we can select the representation of the whole sample. So there are different types of sampling techniques are there. uh, Mostly there are two types of sampling techniques we can be followed. First is called probability sampling and second is called non probability sampling. So probability sampling and non probability sampling. So probability means each and every person in a sample get have equal chance of selection. That means probability, we cannot be decided in our own way that this sample will be selected, this sample has all total attributes of the population, so we are going to focus a sample and select the samples. ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा दिख रहा है चेहरा उसका, उसको ले लिया, या उसके पास बहुत पैसे हैं तो उसको ले लिया, और बहुत गरीब है तो उसको सिलेक्ट कर लिया. ये ऐसे कोई भी मायने नहीं रखता है. आंख बंद करके किसी को हम उठा ले आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. दैट मींस every samples have the equal probability to select. And what is non probability sampling? Non probability sampling में क्या होता है, इक्वल चांस नहीं रहता है. दैट मीन्स दैट इज बायसनेस विद इन द सैंपल. हम अपना खुद का जजमेंट देके हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं. so that is called non probability sampling. So let's see what are the different types of probability and non probability sampling.
So with probability sampling, each element has a probable of being included in the sample, and non-probability samplings do not allow researcher to determine its probability. सिंपल थिंग्स है ये. जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें सारे सैंपल का चांस रहता है कि वो आपका सिलेक्ट हो सके, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है, हम उसको जानबूझ के सिलेक्ट करते हैं वो सैंपल. दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. So which is better, probability or non-probability? That means probability sampling is better than non-probability sampling, but in some cases probability sampling is not possible, and due to some restriction constraint we have to force to do the non-probability sampling. So probability samplings are again different types: simple random sampling, complex random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, area sampling. So there are different methods of probability samplings are there. We are going to actually study in details for every samples. Then non-probability samplings, there are also several methods of non-probability sampling like deliberate sampling, convenience sampling, judgment sampling, and quota sampling. So there are different types of non-probability sampling. So let's discuss the non-probability sampling first, because it is a bias based sampling, or we are going to choose the sample from the population in our own way. So by definition, it is the sampling where there is a certain procedure we can follow which does not avoid any bias. That means we are forcefully intentionally going to do biasness. हमारा जो है पार्शियलिटी करके कोई सैंपल उठा ले आते हैं, सो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है. बायसनेस उसमें रहता है फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पॉपुलेशन आर बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. ये जो हमारा जो बोलते हैं कि ना किसी को भी हम ले आते हैं वो सारे रिप्रेजेंट करेगा, but in that non-probability samplings we are forcefully select a sample which have some certain determinate attributes. मान लीजिए आपको 100 सैंपल है, 100 एक फूल का बागान है, उसमें जाके फूल तोड़ना है, 10 फूल तोड़ना है, लेकिन वहां पे हजारों फूल लगे हुए हैं, तो आप कैसे जाके तोड़ोगे? जैसे कि देखना जो पूरा अच्छे से खिला हुआ है या जो सबसे बड़ा है उसको हम चूज करके पिक करेंगे. तो ये जो प्रोसीजर है कि हाँ जो अच्छा दिख रहा है उसको चूज करूंगा, जो बड़ा है उसको चूज करूंगा, ये जो मन में आया वो we are going to partiality or we are going to do biasness for selecting this type of sample. तो ऐसे तो चूज करेंगे तो जो छोटा रह गया है साइड में रह गया है वो तो नहीं चूज हो पाएगा फिर, तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. So but for the betterment of our result we are going to do non probability sampling. तो छोटा वाला फूल हम चूज करेंगे तो उसमें सारे गुण ना हो सकता है भी है, तो हमारा जो रिसर्च का रिजल्ट है वो खराब हो सकता है, इसीलिए हमने बड़ा वाला फूल चूज किया. इसके पीछे एक रीजन है. So that way this non-probability sampling exists. So there are four types of non-probability samplings are there: deliberate sampling, convenience sampling, quota sampling, and judgment sampling. So let's come to the first deliberate sampling. Deliberate sampling is simple the things, deliberate meanings which is going to choose or select the sample by purposefully. By fully purpose, कोई उसका पीछे एक रीजन रहेगा, उसके लिए हम उस सैंपल को चूज करके लाएंगे. जैसे अभी मैंने एग्जाम दिया कि बड़े फूल का बगान है, सबसे बड़ा वाला फूल जो फूला हुआ है उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको पहले चूज करेंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए. तो उसका मेन रीजन क्या है? वो क्योंकि सबसे बड़ा है, सुंदर दिख रहा है, वो रीजन है. So that's why that is type of sampling is called deliberate sampling. That means there is called as purposive sampling or deliberate sampling or non-probability deliberate sampling. That means there is a specific reason, there is specific purposeness for selecting the sample from the population. So this sampling method involves purposive or deliberate selection of particular sample from the universe. That's why it is called deliberate sampling. हम लोग जानबूझ के पर्पसफुली कोई सैंपल को उठा ले रहे हैं for our research purpose. That is called deliberate sampling. Then convenience sampling. Convenience सिंपल इंग्लिश मीनिंग है, उसका मतलब है ईज ऑफ एक्सेस. आप जो फूल को तोड़ना है बागान से, जो आपका ज्यादा दूर अंदर जाना ना पड़े, कांटा आपको ना लगे, पास में है, उसको हम उठा ले आएंगे. भले ही वो सबसे बड़ा ना हो लेकिन आपका इजी हैंड ऑफ एक्सेस मिल रहा है तो उसको हम ले आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग. which sample which is selected by the researcher by easy of access, जो आसानी से मिल जाता है, easy to collect, that type of sampling is called convenience sampling. Because sometimes we are going to select the sample but the sample are out of reach. हम उसको सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे, चूज करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम एंड बजट ज्यादा चले जाएगा. So in that case we are going to choose convenience sampling
where the sample is chosen easy of access, आपका हाथ के पास में जो सबसे इजी है ऐसे सैंपल उठा के ले आओ, and that we are going to be done. So this type of sampling is called convenience sampling. Simple thing है. So this is the deliberate sampling and convenience sampling. These are नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि हमने रेंडमनेस नहीं है इसमें, हम लोग जानबूझ के डेलिबरेट में जो जानबूझ के पर्पसफुली हम उसको सिलेक्ट किया, सेकंड कॉन्फिडेंस में जानबूझ के जो हाथ में आया पहले वाला फूल उसको हम ले आए, जल्दी जो मिला आसानी से. तो दीज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज judgment sampling. Judgment sampling is also a non-probability sampling where the researcher's judgment is used for select the item. जो रिसर्चर्स है जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए गया है उसमें खुद अपना दिमाग लगाया कि आपके पास 100 या 1000 चॉइस है, तो जो रिसर्चर्स है जो वहाँ पे सैंपल कलेक्शन करने के लिए गया हुआ है उसने दिमाग लगाया कि मैं 1 2 3 4 नहीं 5 नंबर फूल को चूज करूंगा, क्योंकि 5 नंबर जो सैंपल है मुझे अच्छा लग रहा है. किसको अच्छा लग रहा है? जो रिसर्चर है उसको आज अच्छा लग रहा है, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू मैं इस बायसनेस और एनीथिंग उसको अच्छा लगा, तो इसके लिए उसको उसने कलेक्ट किया वो सैंपल. सो दैट रिसर्चर जजमेंट इज द फाइनल कंसिडरेशन फॉर द रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. सो दिस इज कॉल्ड जजमेंट सैंपलिंग. वो जजमेंट अपने हिसाब से ले सकता है. एक्स वाई जेड 3 लोग अपने गए हैं वहां पे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो जजमेंट ऑफ एक्स में भी डिफर फ्रॉम जजमेंट ऑफ वाई, जजमेंट ऑफ जेड. तीनों का जजमेंट अलग अलग हो सकता है, तीनों का रीजन अलग हो सकता है और तीनों का सैंपल अलग हो सकता है, because we are going to choose the sample by the judgment of the researcher only. So this is called judgment sampling. Here the judgment or the biasness of researchers is in the way. जो रिसर्च वो सैंपल कलेक्शन करने के लिए गया होगा उसका जजमेंट मैटर करता है वो किसको चूज करेगा. That may influence the result. That's why it is also non-probability sampling. For example, a judgment sample of college students might be taken secure reactions to a new method of teaching. ये एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है तो नया मेथड्स है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसमें एक रैंडमली स्टूडेंट को पूछा भाई ये मेथड का कैसा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इजी लग रहा है कि नहीं. तो स्टूडेंट बोला हाँ इजी लग रहा है, लेकिन दैट मे नॉट बी इजी फॉर ऑल मैथ स्टूडेंट्स. So by the taking the judgment of a single student, we can conclude the whole populations for the same. So that is called judgment sampling. And last fourth type of non-probability sampling is called quota sampling. कोटा सैंपलिंग ये हम लोग को पहले से ही पता है, जैसे कि गवर्नमेंट सीट कोई आता है उसमें पोस्ट रहता है, एसटी का 5 रहता है, एससी ओबीसी, आजकल तो और ईडब्ल्यूएस कोटा आ रहा है, जनरल कोटा आ रहा है, उसके बाद या नॉन माइनॉरिटी कोटा आ रहा है, तो ये सारे कोटा रहते हैं. तो सैंपलिंग चूज करने के टाइम पे भी इफ यू आर चूज द सैंपल बाय दिस कोटा सिस्टम्स, देन दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग. Quota system, that means what's happened, you are simple divide this population into different categories. डिफरेंट कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दिया और उसको एक एक कोटा बना दिया, तो उसमें से हम लोग कुछ सैंपल उठा ले आए सैंपल. सो दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग. व्हेन कॉस्ट ऑफ टेकिंग रैंडम सैंपल इज सो एक्सपेंसिव, जैसे कि जिस टाइम पे ज्यादातर हम लोग रैंडम सैंपलिंग लेने के टाइम ज्यादा पैसा लगेगा या टाइम लगेगा, तो इन दैट केस वी आर सिंपल चूज द कोटा सैंपलिंग, एंड where the researchers going to fill the or take the sample from different quota or different types of groups. So the size of the quota in each area is generally proportionate to the size of the strata for the population. That means जो ग्रुप होगा, मान लीजिए कोई हम लोग 10 ग्रुप चूज किया है, पहला ग्रुप में 100 लोग हैं, दूसरा ग्रुप में 1000 हैं, तीसरा ग्रुप में 1 लाख है, तो जो 100 ग्रुप्स है, 100 नंबर ऑफ ग्रुप ए जो है उसमें से मान लो एक ही हम लोग सैंपल चूज किया होंगे, तो जिसमें 1000 टोटल सैंपल्स रहा पॉपुलेशन रहा होगा उसमें से 10 सैंपल चूज करेंगे, जिसमें लाख वाला सैंपल पॉपुलेशन होगा तो उसमें कम से कम 100 सैंपल चूज करेंगे. सो द नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैंपल्स. तो कितना सैंपल हम उठाएंगे, कोटा किससे कितना लाएंगे, तो उसके हिसाब से हमको वो सैंपल चूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर considering एरिया वाइज कोटा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिलेक्टिंग वन सैंपल फॉर गोवा, गोवा के लिए जो है उसका छोटा एरिया है, एक सैंपल चूज करेंगे, तो गुजरात के लिए एक को वो एक सैंपल लेंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा. तो उसका एरिया के हिसाब से मान लो 10 सैंपल लेना है, थोड़ा 10 गुना बड़ा है उसका गुजरात का एरिया,
तो गुजरात से 10 सैंपल चूज करेंगे, तो ये हो गया कोटा वाइज सैंपलिंग। So this sampling is important for non-probability sampling because this quota is also a part of the non-probability sampling when there is we are taking less number of time and less number of funds to select the sample. So these are the different 4 types of non-probability sampling. ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिससे 6th सेमिस्टर में था हमारा MBSc में, सेम थिंग है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन कम टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जो सैम्पलिंग में रैंडमनेस और बायसनेस नहीं हो, मतलब ज्यादा ही होता है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट मींस इक्वल प्रोबेबल फॉर गेटिंग सिलेक्टेड द सैंपल्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड ए रैंडम सैम्पलिंग। हम लोग किसी के ऊपर भी बायसनेस नहीं करते, वो हाथ के पास में है तो इजी एक्सेस तो ले आएंगे ऐसा नहीं, हमारा मन लगेगा तो ले आएंगे तो ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और अकड़ पकड़ करके जो भी आएगा उठा के ले आएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरेस्ट टू द सैंपल्स व्हाट एवर मे बी, वो सैंपल कोई भी हो सकता है उसमें से। तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग और इनको बोलते हैं चांस सैंपलिंग, बाय चांस, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके कोई भी चूज किए तो बाय लॉक बाय चांस कोई भी आ सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडरिंग कोई भी, मतलब इसका जो मार्क ज्यादा है तो हम लोग मेंटर बना देंगे। मान लीजिए कोई क्लास में किसी को मेंटर बनाना है, तो जो ज्यादा एक्टिव है उसको भी मेंटर बन सकता है, किसका मार्क ज्यादा है वो भी बन सकता है, जो सब ज्यादा जिसका अटेंडेंस है वो भी बन सकता है। तो ये सब हम लोग चूज करेंगे तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाएंगे। बट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा, कोई भी रैंडम हम नंबर बोलेंगे, रोल नंबर 15 मैं नहीं जानता हूँ, वो आके मेंटर बन जाए। तो ये जो हमने चूज किया जो ऑप्शंस, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग, चांस सैंपलिंग और सिंपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। So this sampling designing main point is every item of the universe or every item of the populations have a equal chance of the selecting the sample। उसमें हर किसी का इक्वल भागीदारी रहता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, जैसे कि लॉटरी। देखते हैं क्या है। Then probability sampling is again two categories, simple random sampling and complex random sampling। दो तरीका का होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज सिंपल लॉटरी मेथड, इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड, और प्योर प्योर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें कोई भी तरीका का कोई भी पैच और या कोई भी कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल रैंडमली चूज ए सैंपल, आंख बंद करके किसी को उठा लेना है। दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग और चांस सैंपलिंग, where it is also called as lottery methods। So here probability of selecting a sample is equal for all। कोई भी सैंपल है वो भी अपना सिलेक्ट हो सकता है, इसका कोई उसका नहीं रहता है कि गाइडलाइंस नहीं रहता है, SOP नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है इसमें। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग और लॉटरी मेथड्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, 6 मार्क का भी आ सकता है। तो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन कम टू कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग दो तरीका का है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स किसका बोलते हैं, सिंपल तो बोलते हैं जस्ट सिंपल, उसमें सारे इक्वल चांस रहता है। कॉम्प्लेक्स इज द मिक्स ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग था, रैंडमली भी चूज करेंगे और उसमें कुछ बायसनेस भी डाल देंगे, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो ये दोनों का जो मिक्स करने के बाद जो हम लोग सैंपल चूज करेंगे फॉर द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड random complex random sampling। So this complex random sampling are again different categories are there। First is called systematic sampling। What is systematic sampling? In some instance the most practical way of sampling is to select every 15th name of a list on every 10th house of outside of the street। So this type of sampling is called systematic sampling। ये randomness भी है और उसमें कुछ बायसनेस भी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सोसाइटी में आपको कुछ सैंपल्स लेना है कुछ घरों का, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं तो उसमें रैंडमनेस आ गया, कोई हम लोग हमारा जान पहचान है उसको हम ले आएंगे तो बायसनेस हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बट हम किसी को नहीं जानते हैं, बट वी आर आल्सो चूजिंग द सैंपल इन रैंडमली एंड सिस्टमेटिकली। जैसे कि बोलेगे एवरी 10th नंबर
हाउस ऑफ द एवरी सोसाइटी, हमने किसी को नहीं पहचानते, लेकिन 10 नंबर घर में जो रहता है उसको हम उठा ले आएंगे। या एवरी 15th नेम ऑफ द लिस्ट, अटेंडेंस लिस्ट का सभी क्लास का 15 नंबर जिसका रोल नंबर है उसको मैं ले आऊंगा। तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बट देयर इज ए रेंडमनेस एज वेल एज ए सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सो दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड systematic sampling. This comes under complex random sampling, where there is a mix of biasness or non-probability as well as the probability. That means randomness. Both randomness and non-probability sampling both are mixing in this type of sampling. So this is called systematic sampling. Example इसमें और भी है. In some instance, most practical way of sampling is very often the least. So in that case, systematic sampling is useful. An element of randomness is introduced into this sampling as well as to pick the which is start. That means कोई भी है तो randomness भी है, उसके साथ साथ कोई biasness भी है. So this systematic sampling is most useful because it includes some biasness as well as non-biasness. Biasness is necessary because there is a restriction in time and some money as well as getting the sample. For example, कोई आपका सैंपल वाटर सैंपल कलेक्शन करने के लिए जा रहे हो, आपको क्या होगा, एक रिवर है, रिवर में से आपको पानी सैंपल आपको कलेक्शन करना है। तो व्हाट इज द वे, रिवर का मिडिल में जाके सैंपल 10 मीटर गहराई से पानी से सैंपल लाना है, और पानी अभी जो बारिश हो रहा है अभी रिवर का मिडिल के रिवर का साइड में जाने का भी आपको मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कैसे करेंगे, आपको आपको तो सैंपल लाना ही है, तो बायसनेस दिखाना पड़ेगा वहां पे। शैम्पू हमको रिवर के मिडिल में जाके नहीं ला सकते, तो साइड से कहीं से भी जो ला के जिसमें हम एक्सेसिबल हैं, जैसे कि हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग हिसाब से वो सैंपल हम ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन बायस सैंपलिंग, सॉरी बायस सैंपलिंग, क्योंकि हमने कन्वीनियंस से सैंपल चूज किया। उसमें सिस्टमेटिक सैंपल भी चूज कर सकते हैं, रिवर का जो है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए और इस एरिया में इसमें चूज करेंगे, दूसरा एरिया में इसमें चूज करेंगे। तो ये आपका अपना वे होता है जिसमें कि सैंपल आपको चूज किया जा सकता है। सो दैट इज मिक्स कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग। देन सेकंड टाइप ऑफ रैंडम मिक्स कॉम्प्लेक्स सैंपलिंग इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। पहले जो था वो सिस्टमेटिक था, देन नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड। Stratified means you have to separate or you have to make some subgroup। बहुत बड़ा सा एरिया है, जैसे कि मान लीजिए गुजरात से आपको 10 सैंपल लाना है, तो कहां से लाएंगे, वडोदरा से 10 सैंपल ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक सैंपल लेंगे तो अभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वी आर मेकिंग सम स्ट्राटा और मेकिंग सम area or some division of this total population, that equals strata. When there is constitute a homogeneous group, that is important, homogeneous group होना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूं, कोई हम फॉरेस्ट में जाते हैं और इफ यू आर गोइंग टू टेक 10 सैंपल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट एरिया, आपको गिर फॉरेस्ट में जाना है, 10 सैंपल उठा के लाना है पेड़ का, मतलब कोई भी ट्री का या कोई भी प्लांट का, मान लो प्लांट का बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, फॉरेस्ट में जाके हम लोग बहुत सारे सैंपल्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, एंड दैट ग्रुप शुड बी होमोजेनियस ग्रुप। कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक ग्रुप डिवाइड करेंगे सारे ट्री का, एक ग्रुप डिवाइड करेंगे सारे हर्ब का, एक ग्रुप डिवाइड करेंगे सारे श्रब का, एक ग्रुप डिवाइड करेंगे सारे एक्वाटिक प्लांट का। ऐसे अलग अलग ग्रुप डिवाइड कर देंगे और सारे में से एक एक सैंपल लेके आ जाएंगे। so that can consisting total sample represent the total population, as well as we are dividing small homogeneous group, and the homogeneous group is called strata. Every strata you have to go and take a sample, so this is called stratified sampling। हमने क्या किया, जो बड़े जो यूनिवर्स था उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किए, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्राटा, एंड वी आर टेकिंग द सैंपल विद इन स्ट्राटा इन रैंडम मैनर। जो ट्री हमने चूज किया था उसी ट्री में से रैंडमली कोई हम उठाएंगे, जो एक्वाटिक प्लांट में चूज किया था उसको भी रैंडमली हम लेंगे, बट वी आर बिफोर टेकिंग द सैंपल वी आर डिवाइडिंग them equal homogeneous group, that is called strata, and this type of strata sampling is called stratified sampling। so it is the item selected for stratum is based on the random sampling। every जो सब ग्रुप है उसी से जो सैंपल हम लोग सिलेक्ट करेंगे that is based on simple random sampling, but before that we are make some strata for easy to
select the sample. That's why it is called stratified sampling. So यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है what is strata. So strata is nothing but a small sub group of homogeneous, but it is homogeneous. That means it is a small sub homogeneous group of a population. Strata means homogeneous, छोटा छोटा homogeneous group होना चाहिए. Homogeneous means इक्वल टाइप का ग्रुप होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए. तो ये होता है स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग. तो फर्स्ट हो गया आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग, देन हो गया स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग. नेक्स्ट कम तो क्लस्टर सैंपलिंग एंड एरिया सैंपलिंग. ये दोनों लगभग सेम है, इसीलिए एक ही जगह पे दिखाया गया है. क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा, वी आर मेकिंग द होल पॉपुलेशन इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर. देखो हम वहां पे स्ट्राटिफाइड में भी ग्रुप डिवाइड किया था, उसको स्ट्राटा बोल रहे थे. यहाँ पे क्लस्टर में भी सेम चीज है, बड़ा पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप करेंगे, उसको क्लस्टर बोलेंगे. एक ही डिफरेंस है, जो स्ट्राटा है दैट इज शुड बी होमोजेनियस ग्रुप, ये होमोजेनियस ग्रुप होना चाहिए. और जो क्लस्टर है दैट मस्ट नॉट होमोजेनियस ग्रुप, ये होमोजेनियस होना जरूरी नहीं है. ये हम लोग को एक कोई रीजन वाइज, डिवीजन वाइज या एरिया वाइज भी कर सकते हैं. So that is the difference. In strata, we are making some homogeneous group. In cluster, we are making some equal subgroup only, not necessary to homogeneous. ये difference है. So this is called cluster sampling. ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, उसको क्लस्टर बोलेंगे और उसमें हम सैंपलिंग ले जाएंगे. तो दिस इज क्लस्टर सैंपलिंग. But when the cluster is represent some geographical area, then it is called area sampling. Same. क्लस्टर मतलब कोई भी नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसमें सिर्फ एरिया पे फोकस करेंगे. मान लो जो कोई जियोग्राफिकल एरिया दिया मैंने, जैसे एग्जांपल दिया टोटल इंडिया से आप सैंपल लिया हो, तो इंडिया को हमने 30 डिवाइड स्टेट में डिवाइड कर दिया या 30 एरिया में जोन में डिवाइड कर दिया. तो जियोग्राफिकल एरिया जिसमें कोऑर्डिनेट रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ये एरिया है, ये एरिया है, देन दैट इज कॉल्ड एरिया सैंपलिंग. दैट क्लस्टर सैंपलिंग इज कॉल्ड एज एरिया सैंपलिंग. इसमें भी नॉन होमोजेनियस रहेगा, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया जाएगा. क्लस्टर में क्या होगा, छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड किया जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड क्लस्टर. बोथ आर सेम, बट व्हेन द क्लस्टर रिप्रेजेंट सम एरिया, जियोग्राफिकल एरिया खास करके, तो दैट इज द एरिया सैंपलिंग. Under area sampling, we have divide total area into small zone और non overlapping area. Means वो area जो है एक के साथ एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करना है. मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका स्क्वायर को मान लीजिए दो दो गार में ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो जाएगा. तो उसको बोलेंगे हम एरिया सैंपलिंग. सो नॉन होमोजेनियस जियोग्राफिकल एंड नॉन ओवरलैपिंग एरिया आर कॉल्ड एरिया सैंपलिंग. एंड तो छोटा छोटा एरिया रहेगा, उसमें से हम लोग रैंडम सैंपलिंग हिसाब से सैंपल लेते रहेंगे. देन कम टू मल्टी स्टेज सैंपलिंग. मल्टी स्टेज सैंपलिंग, दिस इज ऑल्सो ए आइडिया ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग. ये भी एक क्लस्टर सैंपलिंग का आइडिया है, बट हियर in terms of the big entity you are taking small geographical area, and within the small geographical area we are again divided into small geographical area. जैसे एग्जांपल्स दिया है, कोई भी कंट्री है वो स्टेट में डिवाइड होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन में डिवाइड होगा, टाउन स्मॉल सोसाइटी में डिवाइड होगा, सोसाइटी स्मॉल फैमिली में डिवाइड होगा, फैमिली फिर अपना इंडिविजुअल में डिवाइड होंगे. तो ये जो बड़ा सा जो चीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया को छोटा छोटा जगह पे कन्वर्ट करते जाएंगे, और एवरी स्टेज वी आर डिवाइडिंग इक्वल स्मॉल ग्रुप, और स्टेज वाइज होना चाहिए वो. दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैंपलिंग. दिस इज ऑल्सो ए फर्दर एक्सटेंड ऑफ दिस एरिया सैंपलिंग. तो हो गया एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, एरिया सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग. So all are complex random sampling. Next point is sampling with probability proportional to size. अभी इसमें क्या है, पहले से हमको पता चला है कि छोटा छोटा जो एरिया है उसको हम लोग मान लो सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो उसमें जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा सैंपल उसमें होगा. तो इन दैट केस द एरिया ऑफ द क्लस्टर, दैट मीन जो छोटा एरिया होगा, दैट द नंबर ऑफ साइज, हाउ मेनी नंबर ऑफ द sample we choose, that is defined or that is proportional to the size of the cluster. जितना बड़ा एरिया होगा उसमें से ज्यादा सैंपल आएंगे. मान लो कोई छोटा सा गांव है, उसमें से 2 लोग आ रहे हैं, तो टोटल स्टेट या टोटल विलेज या टोटल डिस्ट्रिक्ट में से जो है
ज्यादा लोग आएंगे, टोटल स्टेट में से और ज्यादा लोग आएंगे, टोटल कंट्री में से और ज्यादा लोग आएंगे। दैट मीन्स एज कंपेयर टू स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट इज स्मॉल तो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन, स्टेट बी इज लार्ज तो उसमें ज्यादा लोग आएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स दिया मैंने किसका, गोवा का और गुजरात का। गोवा में से 1 सैंपल आएगा तो गुजरात में से 10 सैंपल आएंगे, क्योंकि एरिया वाइज वो बड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग प्रोपोर्शनल टू साइज। That is also a further extent of cluster sampling. Then next type of sampling is called sequential sampling. Sequential sampling is somehow a complex sampling where ultimate size of the sample is not fixed in advance and determined according to the mathematical decision basis on the survey progress. ये क्या होगा, ये this is a different type of sampling or complex sampling where you should not design the sampling in a way that previously you should not determine how many numbers of samples are chosen, but that can be decided at the time of sampling or survey on the basis of some statistical or mathematical decision, mathematical equations. ये हम लोग statistical mathematical equation पुट करेंगे, उसमें से कितना सैंपल आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे. So on the basis of some mathematical decision when we are choosing the sample, that is called sequential sampling. पहले हम लोग प्लानिंग नहीं होगा कि हम लोग 10 सैंपल लाएंगे या 20 सैंपल लाएंगे. We are planning, not planning anything, but when we are going for taking samples according to the mathematical decisions we are taking samples. That type of sampling is called sequential sampling. For example, आप लोग 10 सैंपल पहले ले आए थे, एक्सपेरिमेंट करते करते सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा उसको तो मतलब ही नहीं है, सारे फेल हो गए, तो क्या करेंगे, और 20 सैंपल लाने जाएंगे, फिर उसमें से एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, फिर कोई पास हो गया कोई फेल हो गया, हमको और 10 सैंपल लाना पड़ेगा, फिर 30 सैंपल लाने जाएंगे सेम एरिया से. तो ये सीक्वेंस वाइज आप सैंपल और कलेक्ट कर रहे हो फॉर एक पर्टिकुलर एरिया. सो दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सैंपलिंग. सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, ऐसे करते करते सैंपल नंबर 31, सैंपल नंबर 238 भी चले जाएगा, सैंपल नंबर 508 भी जाएगा फॉर द सेम थिंग. But we are not going to success of the result, so we are repeating the sample in a particular area or collecting the sample in a sequential way. So that is a sequential sampling. So this sampling also usually adapted under different sampling plan context of statistical quality control. तो ये कुछ statistical quality control या कोई mathematical decision होगा तभी हम लोग चलते हैं. So this is all about this complex random sampling and simple sampling, simple random sampling. So in this there are so many questions may be asked, जैसे कि what is the what are different types of sampling techniques used in statistical research. ये हो सकता है, ये टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा सारी चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है what is the difference between simple random sampling and complex random sampling. What are the different types of simple random sampling is, what is lottery sampling, what is strata, what is the difference between strata and cluster, what is the difference between area sampling and cluster sampling. So these are the different more variety of questions may come arise from this sampling technique. तो इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नहीं सर, समझ में आ गया. हाँ, ये तो हम लोग लास्ट टाइम भी उसमें आया था क्वेश्चन शायद, तो इसमें ज्यादा है नहीं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राटा एंड क्लस्टर, बताइए. स्ट्राटा एंड क्लस्टर. क्लस्टर cluster is the something स्ट्राटा किसको बोलते हैं, क्लस्टर किसको बोलते हैं. हेलो हेलो. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक. कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं. हाँ सर, बस एक मिनट एक मिनट.
Yes, sir. Now audible? सुनाई दे रहा Hello. है? Hello. हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। Hello. हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा सर। हाँ हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ, तो बताइए क्लस्टर का मतलब हाँ, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि ग्रुप बना देना। जैसे इंडिया कंट्री है हम्म तो हमने क्लस्टर बना दिए, नॉर्थ क्लस्टर, साउथ क्लस्टर, हम्म वेस्टर्न क्लस्टर, ईस्टर्न क्लस्टर। हम्म, ठीक है, तो उसको ग्रुपिंग कर दिया हमने मल्टीपल स्टेट्स का। हाँ, और स्ट्राटा मतलब? क्लस्टर तो इसको बोलते हैं। हाँ, स्ट्राटा। दूसरा आपने बोला था स्टाटा। हम्म, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। स्ट्राटा स्ट्राटा किसको बोलते हैं? हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है? ऑडिबल सर? हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, अब सुनाई। हम्म तो क्लस्टर हो गया, मैंने कंट्री को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम्म 4 क्लस्टर में हम्म या 8 क्लस्टर में। हम्म स्ट्राटा, स्ट्राटा का मतलब हुआ कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से है ना, या पर्टिकुलर कास्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उसको मैंने डिवाइड किया, तो देट विल बी अ स्टार्टर। नहीं वो नहीं है। अच्छा। स्ट्राटा मीन्स होमोजेनियस। आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। स्ट्राटा भी एक सब ग्रुप है, डिवाइड करते हैं, बट दैट इज होमोजेनियस होना चाहिए। हाँ ठीक है, स्ट्राटा इज अ स्मॉल सब ग्रुप विच इज होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, ये स्ट्राटा होता है। और क्लस्टर मतलब क्या है? होमोजीनियस मीन्स। ये भी सब ग्रुप है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ए होमोजेनियस ग्रुप। आप जैसे बोला कि कोई छोटा छोटा कंट्री है, उसको स्टेट या कोई डिवीजन में डिवाइड कर दिया, ये आपका क्लस्टर होगा। एंड सिर्फ होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हम लोग जो कंट्री है उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक में सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, एक में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, एक में सिर्फ एस टी रहेंगे। तो एक होमोजेनियस ग्रुप में जब डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग क्लस्टर बोलेंगे, सॉरी स्ट्राटा बोलेंगे। बट तो वही 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 तो कहा मैंने सर, हाँ के पॉपुलेशन को जो है वो हम हाँ, लेकिन कंट्री ये की पॉपुलेशन होमोजेनियस को। वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। दोनों में अच्छा, डिफरेंस होमोजीनियस है, ये वर्ड। होमोजेनियस वाला। दोनों ही सब ग्रुप है, अच्छा। छोटा छोटा ग्रुप डिवाइड होगा, बट क्लस्टर में ओके। होमोजेनियस ग्रुप है। और जो सॉरी, स्ट्राटा में होमोजेनियस स्टार्ट। ग्रुप है, और क्लस्टर में होमोजेनियस का नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। और एरिया मतलब क्लस्टर को जब जियोग्राफिकल एरिया में डिनोट करेंगे तो हम उसको एरिया सैंपलिंग बोलेंगे। ये जी डिफरेंस है। सर। जी जी जी। सो अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो 4 मेथड्स है उसका नाम क्या क्या है बताइए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। हेलो। हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम्म डेलीब्रेट सैम्पलिंग, हम्म कोटा सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैंपलिंग। तो ये जो चारों सैंपलिंग है उसमें से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलिब्रेट एंड कन्वीनियंस? डेलीब्रेट मतलब हमें करना ही है सैम्पलिंग एनी हाउ। हाँ, कन्वीनियंस जो है वो हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। बस बस। कन्वीनियंस। हम्म, सही है। ये थोड़ा सा
देख लेना बस, इंटरनल में आएगा हाँ ही हाँ, सर। पढ़ लूंगा मैं सर, इसको पढ़ लूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आज नेक्स्ट क्लास में आगे आएंगे डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग में टेक्निक। डन डन सर। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर, बाय।